हम शुरुआत करते हैं, ये क्यों, इसकी क्या भूमिका है, क्या आंदोलन की जरूरत पड़ गई, क्यों आंदोलन की जरूरत पड़ गई, और क्या है जीएम सरसों के हमारे सरोकार आदरणीय श्री कपिल शाह। ये एक सोया हुआ सांप को फिर से अचानक जगाया गया है, हम ये कहेंगे। तो 2016 से ऐसा मानते थे कि अब देश को ये समझ में आ गया है कि इस प्रकार की रिस्की टेक्नोलॉजी नहीं आनी चाहिए, स्पेशली हर्बिसाइड टॉलरेंस, एचटी फूड क्रॉप, एचटी क्रॉप और एचटी फूड क्रॉप। और इतना सारा डेटा का रीडिंग और मिस इन्फॉर्मेशन फैला के जो तैयार की गया पूरा अनसाइंटिफिक रूप में, हमने माना था कि उसका उनके पास कोई जवाब नहीं और सरकार ने अब उसको छोड़ दिया है। मंत्री जी ने उस समय उसके ऊपर दस्तखत नहीं किए थे और अप्रूवल को रोक दिया था। उसके बाद भी अचानक बहुत ही जल्दी में, और मान ले कि हमें कब कब दो हफ्ते भी नहीं दिए और तुरंत रिलीज भी कर दिया। रिकमेंडेशन से अप्रूवल कब हो गया पता नहीं, और शायद पता लगा है कि बुवाई भी हो चुकी है। तो ये सोए हुए सांप को जगा के उसके साथ बिल्कुल बीम बजाना शुरू कर दिया है, और ये बहुत ही चिंता का विषय। मैं 3 मुद्दों के ऊपर बात करूंगा। पहली बात यह है कि इसमें पेरेंटल लाइन को भी एनवायरमेंटल रिलीज के लिए मंजूरी दे दी है। हम ये पूछेंगे कि ये जिसका बच्चा ठीक से टेस्ट नहीं हुआ है, उसके माता पिता को बिना पूरा टेस्टिंग रिलीज कर देना और अलग अलग आईसीआर के इंस्टीट्यूट को दे देना कि आप जितने बच्चे बनाने हैं उतना बना के उसका आप किसानों को देना शुरू कर दो, वो टोटली अनसाइंटिफिक। इन 2016 वी हैव रिटन ए लेटर टू जीईएससी व्हाट आर द ऑब्जेक्शंस अगेंस्ट रिलीजिंग पेरेंटल लाइन्स. These are the transgenic parental lines. We had about 20 objections. None of them have ever been addressed. उसका पूरा टेस्टिंग नहीं हुआ है. Both parents are herbicide tolerant parents. They produce 100% herbicide tolerant F1 irrespective of whatever the genome is used. These 2 parents are herbicide tolerant parents and they will produce 100% herbicide tolerant F1, whether it's a DMH1, 11 or whatever. Then the parents have never been tested as herbicide tolerant lines. They were sprayed with herbicides, but their impact on soil, insects, beneficial insects, especially honeybees and pollinators, have never been tested as an impact of herbicides on those insect biology. The very product is whatever has been tested as a food under biosafety, feeding to the animals and in the laboratories, were also never sprayed with herbicides, or the material fed to the animals was taken from DMH11 without spraying herbicide, but the parents were sprayed with the herbicide. So the material fed to the laboratory animals was not sprayed with herbicide. This has to be done. उसके सिवा कोई टेस्टिंग होता है उसका कोई अर्थ नहीं। ये बहुत बारी बारी से कहा जाता है कि इससे मेल स्टेरिलिटी की टेस्टेबिलिटी आती है। ये जो बीबीबी वाली लाइन है, बार्नेट बारस्टार बार्नेट बारस्टार सिस्टम इज मेल स्टेरिलिटी के लिए अच्छी है। दैट इज नॉट द केस. Whatever the data we could achieve, scanty data, it's very much evident, very much recorded that this male sterility is breaking. What could be the consequences of breakage of male sterility in hybrid seed production? Plus, what could be the pollen flow and how it would impact the horizontal gene transfer of male sterility and herbicide tolerant gene that has also not been tested for the parental lines. The crossability study is also not been tested for the parental lines. CMS, cytoplasmic male sterility, is very much required to produce the hybrid.
and that has already been utilized for more than 20 years in India. So, what is the comparative advantage or disadvantage with the existing mail sterility system has also never been tested. So, there are about 20 such points of objections जिससे हम कह सकते हैं कि पेरेंटल लाइन का टेस्टिंग ठीक से किया नहीं. They didn't test parental lines well enough. They tested its offspring DMH11 to some extent. That was also fraudulent, I would say. And then they released the parental lines. This is point number one for us in the present scenario. Second is, I would like to ask, what is the role of GEAC? GEAC is made an appraisal agency, not the approval agency, after BT Brinjal debate. Then the environment minister critically and categorically changed their position. How come, based on the recommendation, GEAC's recommendation, the seeds are being distributed, have been distributed, and to the best of our information, somewhere sowing has also been done. So this is completely illegal. How come, based on the recommendations, sowing or distribution of the seeds can be done? Who is the real approval authority for the environmental release, and whether the approval later is made public or not? This is also a question of concern for us. And lastly, I would say that HT crops are very much discouraged. I would say in some of the committee, it was recommended that it should be not allowed, including the technical expert committee report, which is lying with the Supreme Court. Majority out of 5 or 6, 4 or 5 members have come up with the recommendation that HT crops in India should not be allowed. This also echoes the recommendation of 2 parliamentary committees, and also MS Swaminathan Committee on Biotechnology that was established that has come up with the report in 2004. All major scientific and parliamentary and technical experts, group of experts, have come up with the recommendation and with the recommendation not to approve HT crop in India. And still, this team of scientists, what to tell, it's really a scientist or not, have come up with a recommendation, and now crop is sown. Very much problematic for the Indian agriculture. Thank you. और कपिल जी ने जो भूमिका रखी है उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ डॉक्टर धीरज सिंह, फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ डायरेक्टोरेट ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च, भरतपुर, वो हैं। आदरणीय डॉक्टर धीरज जी को प्रार्थना करूंगा अपनी बात। 40 साल में हमने इस फसल में 478 किलो से लेके आज 2 टन हार्वेस्ट कर रहे हैं, और ये सब एफर्ट एक टीम एफर्ट के कारण हो पाया, जिसमें हम करीब 400% का इंक्रीज कर पाए। हरियाणा आज के टाइम में अगर आप बेस्ट प्रोडक्टिविटी की बात करें, 2 टन प्रोडक्टिविटी जो 120 डेज और 130 डेज की क्रॉप जहां देशों में है, उनमें हम सबसे अग्रणी हैं। अगर मैं बात करूं हरियाणा की, गुजरात की, मध्य प्रदेश की और राजस्थान की और उत्तर प्रदेश की, ये 5 स्टेट ऐसी हैं जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करती हैं। अगर इनका प्रोडक्शन लेवल देखें तो प्रोडक्शन लेवल करीब 1.7 टन से लेकर 2 टन तक है, और ये करीब एरिया 68% एरिया है। और पूरे देश की अगर मैं बात करूं 386 डिस्ट्रिक्ट्स में मस्टर्ड ग्रो होती है, रेपसीड मस्टर्ड ग्रो की जाती है, और जहां का प्रोडक्टिविटी लेवल 250 से लेके 2.8 टन तक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारी कंसर्न एज ए साइंटिस्ट है वो ये है कि किस तरह से हम अपने प्रोडक्शन को डबल करें, और उस प्रोडक्शन को डबल करने के लिए सबसे बड़ी फर्स्ट अप्रोच है जो हमारे टेक्नोलॉजिकल गैप है उनको हमें मिनिमाइज करना पड़ेगा, और उसके लिए ही एफर्ट करने की जरूरत है। दूसरी बात आई आपकी जो टेक्नोलॉजी की बात है, टेक्नोलॉजी में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के लिए ऑलरेडी प्रोविजन है, और जो हाइब्रिड है और वैरायटी की जहां तक मैं बात करूं, अगर हम अपने एक्सपीरियंस की बात करें तो जो हाइब्रिड है और वैरायटी है उनमें कोई बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस क्यों नहीं है? जो जेनेटिक नेचर है क्रॉप की वो ऑलरेडी हाइब्रिड इन नेचर है।
जो रापा है और नाइग्रा है उसी ने जो है इंडियन मस्टर्ड को दिया है। तो जो ऑलरेडी हाइब्रिड क्रॉप नेचर में है वो जो है फर्दर हाइब्रिड में सुपीरियरिटी इतनी हाई लेवल की नहीं ला सकती। अगर किसी भी क्रॉप की बात करूं, किसी भी फसल की बात करूं, तो यील्ड जो है वो डिपेंड करती है जीनोटाइप, चाहे वो वैरायटी हो चाहे हाइब्रिड हो, दूसरे एनवायरमेंट पे और तीसरे मैनेजमेंट पे। अगर मैं मैनेजमेंट का रोल की बात करूं तो करीब करीब 80% रोल जो है वो मैनेजमेंट का। अब रह गया 20% रोल जो है वैरायटीज का और हाइब्रिड का। अब उसमें जो हाइब्रिड है या वैरायटी है उनमें अब पिछले अगर मैं 10 साल का डेटा एनालाइज करके बताऊं तो जो हाइब्रिड है वो स्लाइटली 4 to 5% सुपीरियरिटी हमारे यहाँ शो कर रहे हैं। लेकिन अगर बेस्ट हाइब्रिड की बात करूं तो बेस्ट हाइब्रिड को जज करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि उसमें इकोनॉमिक हिटोसिस कितनी है। इकोनॉमिक हिटोसिस का मतलब जो बेस्ट एग्जिस्टिंग हाइब्रिड है या बेस्ट एग्जिस्टिंग वैरायटी है उससे कितनी सुपीरियरिटी। अगर उससे सुपीरियरिटी की बात करूं तो जो कोई भी हाइब्रिड ऐसा नहीं है तो जो करीब करीब 10% सुपीरियरिटी देता हो। और इसी के कारण जो आईसीआर की गाइडलाइन है वो रिवाइज करनी पड़ी कि भाई अगर हमें हाइब्रिड को प्रमोट करना है तो हम जो 10% का क्राइटेरिया वैरायटी और हाइब्रिड से ले रहे हैं उसको हमें घटाना पड़ेगा और वो करीब करीब 5% करना पड़ेगा। और वो 5% जो है एनहांसमेंट आप जो है उससे कर सकते हैं। अगर दूसरी बात करूं, मैं सबसे इंपॉर्टेंट जो बात करूं, जहां तक स्टेरिलिटी की बात है, कोई स्टेराइल जीन, स्टेरिलिटी का जीन या कोई हर्बिसाइड टॉलरेंट जीन किसी तरह की यील्ड इंक्रीज नहीं कर सकता, किसी तरह की यील्ड इंक्रीज नहीं कर सकता। जहां तक कि हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की बात है, ऑलरेडी जो अवेलेबल सिस्टम है वो उतनी यील्ड देगा जो आपका ट्रांसजेनिक देगा। ऐसा नहीं है कि ट्रांसजेनिक कोई बहुत बड़ी जंप कर दे, लेकिन उसके साथ साथ जो ट्रांसजेनिक के साथ जो मेजर चीजें इशू है वो मेजर इशू है जो एनवायरमेंटल इशूज है, जो कार्सिनोजेनिक इफेक्ट है आपके ग्लूकोसिनेटेड अमोनिया के, जो आज तक मस्टर्ड में कभी रिकमेंड नहीं हो, चाहे वो सीड प्रोडक्शन हो चाहे वो दूसरी अप्रोच हो। जब कोई जो है केमिकल आज तक किसी क्रॉप में रिकमेंडेड ही नहीं है तो उसको जो है लीगली वायलेशन ऑफ जो है पेस्टिसाइड एक्ट है और उसका जो है ना कोई आज तक कोई अप्रूवल है। और अननेसेसरी जो अप्रोच जो 2016 में जो सब चीज ठप हो गई थी कि भाई हमारे पास कोई भी सुपीरियर प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि जो हमारी वैरायटीज को या आज के अवेलेबल हाइब्रिड को बीट कर सके, तो हमें जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है उसी पर ज्यादा से ज्यादा एम्फेसाइज करनी पड़ेगी जिससे हमारे कोई एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज ना आए। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा कि पूरा कनाडा है जहाँ 95% एरिया ट्रांसजेनिक में, वहाँ एक भी वैरायटी, एक भी हाइब्रिड, एक भी जर्म लाइन ऐसी नहीं है जो कंटेमिनेटेड ना हो। अगर मैं अपने देश की बात करूं, पोलन फ्लो की बात करूं, तो अगर मैं अपनी मेल स्टाइल लाइन को 400 मीटर 500 मीटर इवन 700 मीटर दूर भी लगाता हूं तो उसमें भी 100% सेटिंग होती है और ये क्लियरली शो करता है कि पोलन फ्लो होगा। और जब पोलन फ्लो होगा तो जो आज की अवेलेबल वैरायटी है, आज का जीन पूल है या आज की वैरायटी हाइब्रिड्स है वो सब कंटेमिनेट होगी। जो फार्मर है उसकी एक बना कंसेंट के इस तरह की टेक्नोलॉजी को प्रोपगेट करना, अननेसेसरी उस पर एक जादुई चार चांद लगाना कि 28% की सुपीरियरिटी बेस्ट पेरेंट पे है तो 45% 40% यील्ड इंक्रीज कर देगी, ऐसा ना कभी हुआ है ना कहीं है और ना इस तरह की कोई बात सोचनी चाहिए। जो अननेसेसरी का जो झूठ फैलाया जा रहा है, तो आज के टाइम में अगर आप पिछले 10 साल का फार्मर फील्ड का भी डेटा देखें, जो बेस्ट वैरायटी है वो भी आज के टाइम में ऑन एन एवरेज 2.8 टन दे रही है। अगर पोटेंशियल की बात करूं, माय मेनी फार्मर्स आर हार्वेस्टिंग 3.5 to 3.8 ton per hectare, not only in Haryana but in almost all the state. Even you talk for the BISA is an institute, Barlog Institute, where my colleagues are working since last 4 years on mustard, and all average productivity of my variety is 3.4 ton per hectare. These words I thanks for this good opportunity. बहुत बहुत शुक्रिया धीरज जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय रखे हैं, इसका बाद में पत्रकार भाई बात करेंगे। और ये मुझे लगता है कि जब आप ये बातें बता रहे हैं तो सरकार के, जीएसी के और नीति नियामकों के कान खुलने चाहिए। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा मैडम सतविंदर कौर मान, प्लांट पैथोलॉजिस्ट है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की रिटायर्ड डीन है और वो इस विषय पे अपनी बात। मैडम मान प्लीज स्टार्ट कीजिए। To talk a very serious science that concerns the GM crops and the experience so far with this crop in the countries which have been cultivating it since long. Now the first, the GSE has said that the safety concerns
are the concerns when they reach the field level. You know, these crops, whenever they become popular, they tend to become monocultures. And monocultures, they tend to encourage the development of pests and pathogens, new pathotypes. So that is a very well-known scientific fact. Secondly, the weedicide resistance that they have imparted is likely to escape outside. That's called gene pollution, that pollution when you have resistant weeds in the wild. We already have examples of wild maize, mustard resistant in the countries which are growing such kind of crops. And these crops, they reduce the biodiversity because the resistant component of the wild population increases, the wild species of the weeds. It also reduces the microbiome in the soil because of the residual toxicity. Now, there is evidence that in UK farms where GM weedicide resistant, this mustard is being grown, rapeseed is being grown, the farm biodiversity has been reduced by 1/3 to 1/6. So this is a fact that will materialize whenever the crop goes on the field. Secondly, this weedicide, the resistant crop, has the glufosinate tolerance. Now, this is a weedicide, this kind of trait, it allows accumulation of ammonia in the plant and suffocates them to death. Now, this weedicide is already known to be slightly toxic to fish and suppresses soil microbes, but they say it controls some fungal pathogens, but such traits are transitory because the resistance is ultimately evolves. Now, but it is also known to be toxic towards reproductive and developmental development in the rats as well as rabbits. Now, these two organisms are mammals. So the experiments for toxicity are done on these, but not on humans. So what happens when humans consume the crop which has residues of such kind of weedicides? We know what is happening. Mankind is already facing a lot of developmental issues, reproductive issues, and we cannot ignore these facts. The other aspect of this is the crop becoming itself wild. The weedicide resistant seeds can escape to the wild itself, and rapeseed is well known to escape because of the small seeds that it produces and difficult to track them. So such kind of genetic pollution through weeds and escapes is going to affect the biodiversity around the fields. And moreover, such kind of effects have already happened in the countries which were growing glyphosate resistant GM crops like soybean, corn, etc. They have seen that the continuous use of such crops has led to the development of superweeds in the countries like US, where they have found that 76% of the samples of weeds were glyphosate resistant. So this happened in a couple of years. Similar developments are expected to happen in the environment when we release such crops in our conditions. But those are big farms. They may be able to manage such kind of problems, but what will happen to the small farmers in our country? So as such introduction of GM crops with such traits like weedicide resistance may not be a very friendly approach towards small farmers and in the yield increase. Also, yield increase is a transient phase. We have seen it in BT cotton in Punjab. After a few years, there is a kind of devastation which we saw in 2016, 17, and even recently the articles are coming up about the silent fields of Punjab. Can we ignore those facts? The data, academicians have a data which says the yield has increased, but the ground realities indicate that they have not helped the farmers, and farmers in Punjab have been devastated frequently. They may get a good yield in a year, but then the same thing happens because of the evolution of the new pathotypes, new pathogens. We breed resistance against one pathogen, and then the other ones take up, like this white fly in cotton, then mealybug. So they are equally devastating. So therefore, these yield claims, they are not very convincing.
because as soon as the weather changes or the evolution occurs in the new patch type, the crops will come. So these are not convincing at all. Moreover, we don't need GM crops because of the toxicity that they impart to the reproductive system, the developmental changes they induce, the kind of cancer that's prevalent already in Punjab, where high incidence. Such crops are introduced, the use of pesticides, weedicides is going to increase. So already we are grappling with cancer and many other developmental issues. And I would say that it's not a very, at the moment, it's not a really good sign, because US itself says that the problems have occurred because of this these outdated kind of crop culture, monocrop culture kind of agriculture. So we need to transform agriculture at this stage and not follow the same route which has proved itself devastating in other countries. So with these words, I like to wind up, because I don't think so it is worth even trying to introduce it. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है कि डॉक्टर सुंदर कौर मान अगर ये कह रही हैं, तो जो बार बार कही जाती है, हमें कहा जा रहा है कि यू आर एंटी साइंस, आप विज्ञान को क्यों विरोध करते हो भाई, ऐसा बार बार हमें कहा जाता है। और हमने कहा भैया हम विज्ञान का विरोध नहीं करते, कुविज्ञान का विरोध करते हैं। हम समग्र विज्ञान, होलिस्टिक साइंस की बात करते हैं। लेकिन चलिए इस विषय को आगे बढ़ाते हुए सुभाष कंबोज हमारे बीच हैं, बी कीपर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी। सुभाष भाई साहब अनम्यूट कीजिए। नमस्कार, मैं अमित धानुका, मैं हनी एक्सपोर्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूं और सुभाष जी हमारे बहुत प्रिय मित्र हैं। मैं सिर्फ 2-3 पॉइंट बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो हम पिछले 25 सालों से भारतवर्ष से शहद इकट्ठा कर रहे हैं और उसको एक्सपोर्ट करते हैं, और भारत में जो 1.25 लाख टन शहद आज की पैदावार है उसमें 73,000 टन एक्सपोर्ट में जाता है। और जो एक्सपोर्ट में जाता है वो ज्यादातर हनी एनजीपीवी प्रोग्राम, जिसको नॉन जीएमओ प्रोग्राम वेरीफाइड बोलते हैं, उसके तहत जाता है। तो यदि जीएम आ गया तो हमारा एक्सपोर्ट खत्म हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि पंजाब से कुछ लोगों ने ऑलरेडी कहा, तो जब पुरानी कॉटन हुआ करती थी पंजाब में, तो हमारे यहाँ शहद का कलेक्शन बहुत होता था पंजाब से कॉटन के हनी का। मगर जब से हम बीटी कॉटन पे आ गए, बिल्कुल शहद का प्रोडक्शन उसमें खत्म हो चुका है। तो सिमिलर डर हमें सरसों के केस में भी है। और एक इशू जो पहले ऑलरेडी रेज किया मेरे से पहले कुछ वक्ताओं ने, ग्लाइफोसेट इज अ मेजर इशू। मेनी कंट्रीज लाइक यूरोपियन यूनियन एंड जापान आर टोटली एंटी ग्लाइफोसेट। और जहां हम साउथ अमेरिका की बात करें और नॉर्थ अमेरिका की बात करें, जहां जीएम क्रॉप्स हो रही है मस्टर्ड की, वहां ज्यादातर हनी में ग्लाइफोसेट कंटामिनेशन है, इसलिए वो उस हनी को प्रेफर नहीं कर रहे, जिसके कारण भारतवर्ष का शहद बिक रहा है। यदि हमारे हनी में भी ग्लाइफोसेट का इशू आ गया तो हमारा हनी बिकना बंद हो जाएगा। और एक इशू जिस पर आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि अखबारों में और न्यूज आर्टिकल्स में होता है कि इन वेस्ट बीज आर डाइंग, बट हैज एनीवन ट्राइड टू इन्वेस्टिगेट व्हाई द बीज आर डाइंग? द बीज आर डाइंग बिकॉज ऑफ जीएम क्रॉप्स एंड हर्बिसाइड टॉलरेंट क्रॉप्स एंड अनलिमिटेड यूजेज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स। हमारे यहाँ आज भी मधुमक्खी बढ़ रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी स्वीट रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, बीकीपिंग को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, मगर यदि इस तरह का कुछ भी किया गया तो हमें ऐसा डर है कि ये जो बढ़ता हुआ व्यवसाय है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और इसके लिए हम बिल्कुल लड़ेंगे, हम जीएम को नहीं आने देंगे। और आज भी हमारे ज्यादातर बीकीपर भाई सरसों अनुसंधान केंद्र जो भरतपुर है उसका घेराव कर रखा है, करीब 500 बीकीपर वहां इकट्ठे थे। हम उनको ज्ञापन दे रहे हैं और उस ज्ञापन की कॉपी आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। फर्स्टली देयर इज ऑलवेज अ सोशल मीडिया circulation point that in west the bees are dying, and people come back and ask us why the bees are not dying in India. So what we understand, one of the major reasons why instead of dying the bees are increasing in India is that we are still into traditional farming, and usage of pesticides and herbicides in comparison to the western world in India is still limited. One of the basic reasons why Indian honey is preferred in the western countries, especially Europe and also in Japan, is they have restrictions in glyphosate contamination honey. The honey is coming in from South America and Canada are contaminated with glyphosate. Every lot of South American honey is checked. The glyphosate free honey is exported to Japan and European Union. The glyphosate contaminated honey is sold to South America and to the US market. So we strongly oppose bringing in of any GM crop in India.
with our experience, our bees will die, and we will not let this happen, because this will kill our livelihood. 500 of our, approximately 500 of our beekeepers have gathered today. They are marching and having a procession on the Sarso Anusandhan Kendra in Bhartpur today, and we will share all the details with you. Thank you very much. बहुत शुक्रिया अमित जी, बहुत ही शुक्रिया। अब बड़ी बात क्या है, ये प्रकृति खेती की बात करना और ये मधुमक्खी की बात करना, ये पर्यावरण मंत्रालय का काम है। मधुमक्खी की सुरक्षा की बात करना, और जिस मंत्रालय को दायित्व दिया गया कि मधुमक्खियों का संरक्षण करे, अब वो अगर उनके विनाश की ओर आगे बढ़े तो ये कहाँ गड़बड़ है, सोचने वाली बात है। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे भाई युद्धवीर सिंह, युद्धवीर जी बड़े हमारे किसान आंदोलन के बड़े नेता हैं। उसके लड़ाई के रास्ता बचता नहीं है, हमको जो है इन पे ज्यादा ये सारी इस तरह की सेमिनार बहुत हो चुकी है और सबको पता। ऐसा नहीं है सरकार के लोग हमारे स्टैंड को नहीं जानते, और ऐसा भी नहीं है कि उनको ये इन इश्यूज के बारे में शायद ना हो, लेकिन वो इसको इग्नोर करके, इसकी परवाह ना करके पूर्ण रूप से उनका समर्पण है वो जो कंपनियां इस बीच क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। और मुझे नहीं लगता कोई दूसरा रास्ता होगा। एक आंदोलन को हम शुरू करें, और ये भी हम और आप अच्छी तरह समझते हैं कि एक वो आंदोलन जिस आंदोलन का पूर्ण रूप से दबाव बनाए, उसकी एक बड़ी तैयारी हमको करनी पड़ेगी। मैं आपसे अपील करूंगा इस पे कोई योजनाबद्ध तरीके से कार्यक्रम बनाया जाए, लोगों को मानसिक रूप से तैयार करके आंदोलन के लिए तैयार किया जाए। जो पत्रकार भाई हैं आज, उनसे हम ये अपेक्षा रखते हैं कि ये बहुत ही सीरियस मैटर है और उनकी बड़ी भूमिका इसमें हो सकती है। ये बात आम आदमी अभी नहीं समझ रहा कि जीएम क्रॉप्स के क्या नुकसान हो सकते हैं, ये उसकी समझ से बाहर है। उसको अगर इन भाइयों का बहुत बड़ा सहारा हमको मिल सकता है, लोगों को ये समझाया जाए कि खाली मधुमक्खी खतरे में नहीं है, खेती खतरे में। भुगत चुके हैं हम। एक बीटी कॉटन में अपनी 3300 जो हमारी किस्में थी, हमारी स्वदेशी किस्में, उनसे हाथ धो बैठे हैं। तो आने वाले समय में जिस चीज में बीटी आता जाएगा, कोई बीज हमारे हाथ से निकल जाएगा और एक दिन हम बीज कंपनियों के गुलाम होके रह जाएंगे। मंजू देवी हमारे बीच हैं, जो एक मस्टर्ड फार्मर है, मस्टर्ड ग्रोवर हैं। मैं मंजू देवी जी को रिक्वेस्ट सभी को नमस्ते जी, बोलिए जी। हम सीरी विधि से सरसों, धान, गेहूं सब कुछ लगाते हैं। सरसों हम लगाते हैं, उसको पहले बीज को बिचड़ा को नर्सरी करते हैं। उसके लिए हम सरसों के लिए हम 1 कट्ठा के लिए 20 ग्राम हम सरसों लेते हैं। उसमें सुसुम 60 डिग्री सेल्सियस में सुसुम पानी लेते हैं, और 10 ग्राम गुड़ लेते हैं, 10 ग्राम उसमें बर्मीबास लेते हैं, और 10 ग्राम गौमूत्र लेते हैं। ये सब हम 4-5 घंटा के लिए सरसों को फूलने के लिए दे देते हैं। उसके बाद उसको छान करके ट्राइकोडर्मा एक पाउडर आता है, उसमें उपचार कर लेते हैं। उसके बाद 5 फीट का बेड बना करके उस सरसों को हम नर्सरी करते हैं, लाइन से नर्सरी करते हैं। जब वो 12-13 दिन का पौधा मेरा हो जाता है, तो उसको हम खेत में नमी बना रहता है, जुताई करने के बाद नमी रहता है, उसमें 2.5 से 3 फीट के दूरी पर रोपाई करते हैं। 1 कट्ठा में मेरा पहले आम विधि से 30-35 भी नहीं हो पाता था, जो कि अब 1 कट्ठा में मेरा 60 से 70 किलोग्राम चला जाता है। स्क्रीन शेयर करता हूं, ये पत्रकार भाई देख लें। ये SMI जिसको कहते हैं, उसका यील्ड कितना ज्यादा है वो देख लीजिए। वो इस तरफ है, अगर ऊपर जो है सिस्टम ऑफ मस्टर्ड इंटेंसिफिकेशन वो है, और वो देख लीजिए उसके एवरेज यील्ड बिहार में भी कितनी है, और मध्य प्रदेश में तो रिकॉर्ड तोड़ 40 क्विंटल तक वो गया है। ये जो GM सरसों है ये 26 क्विंटल लेगा, और श्री विधि से जो मंजू देवी जी कर रही हैं वो 35 क्विंटल, 46 क्विंटल, 47 क्विंटल तक जाएगा। आप समझिए कितना बड़ा फर्क है। क्या जेनेटिक इंजीनियरिंग की आवश्यकता है। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए अब मैं अंत में हमारे आदरणीय मार्गदर्शक डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी को रिक्वेस्ट करूंगा। देवेंद्र जी आइए।
बहुत बहुत धन्यवाद उमेंद्र जी, और अपने सभी साथियों को सुनकर और उनकी जो इतनी बड़ी अंडरस्टैंडिंग है उसको देख के कि वो साइंस बेस्ड जिसको कहते हैं हमारे साइंटिस्ट के भाई जो लोग इस पे सवाल खड़े करते हैं वो इमोशन पे बात करते हैं, लेकिन हमारे सामने आज जो साइंटिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं या जो फार्मर्स हैं, उन्होंने जो साइंस बेस्ड तथ्य सामने रखे हैं, आई थिंक इट इज वेरी क्लियर कि साइंटिस्ट इन्हीं साइंस बेस्ड तथ्यों से डरते हैं और इसीलिए वो पब्लिक डायलॉग में या डिस्कशन में नहीं आना चाहते। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है इतने सालों से। मैं ये बात स्पष्ट कर दूं कि सारे का सारा जो ये मस्टर्ड का जो खेल है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का जो हम बात कर रहे हैं DMH11 का, वो एक इमोशन के तर्ज पर बेचा जा रहा है। वो ये है कि भाई भारत में इस समय हम 1,15,000 करोड़ रुपए का हर साल जो एडिबल ऑयल्स है, खाद्यान्न तेल है, उनका आयात करते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि सब हमारी जो प्रोडक्टिविटी है मस्टर्ड की, क्योंकि 40% एडिबल ऑयल का जो हमारे देश में उपज होती है वो मस्टर्ड के साथ रिलेट की गई है, तो उनका ये कहना है कि जो मस्टर्ड क्रॉप है इसकी जो प्रोडक्टिविटी है एवरेज जो है वो 1260 किलो प्रति हेक्टेयर है, यानी 12 क्विंटल या 12.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। और जो ग्लोबली जो फिगर दी गई है कि 2000 क्विंटल की 2000 किलो की उनकी पैदावार है ग्लोबली, तो हम तो ग्लोबल से बहुत नीचे हैं ये कहा जा रहा है। तो इसकी पैदावार बढ़ाने के लिए हमें एक नई किस्म चाहिए, और जो DMH11 जो धारा मस्टर्ड हाइब्रिड की एक सीरीज में ये नंबर है DMH11 जो GM तरीके से बनाई गई है, उसकी बात हो रही है कि इससे जो है प्रोडक्शन बढ़ेगी। मैंने हर बार ये कहा है कि ये जंक वैरायटी है, और मैं फिर दोबारा कहना चाहता हूं कि DMH11 इज ए जंक वैरायटी। हम लोग जिन्होंने एग्रीकल्चर साइंस पढ़ी है हम जानते हैं कि जिस वैरायटी की यील्ड जो है वो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वैरायटीज हैं उनसे कम होती है, उसको हम डस्टबिन में डाल देते हैं। मेरा भी ये मानना है कि दिस वैरायटी शुड हैव एक्चुअली गॉन इनटू ए साइंटिफिक डस्टबिन, लेकिन इसको दोबारा निकाल के हम जो लेकर आए हैं 2016 के बाद, आज हम देख रहे हैं कि इसको दोबारा निकाल के लेके आए हैं। मुझे लगता है कि जो प्रमोटर थे उसके उनको भी शायद बड़ा अचंभा होगा कि ये दोबारा कैसे सिस्टम में आ गई या दोबारा कैसे इसको प्रमोट किया जा रहा है। खैर, सारी बात ये है कि क्या ये जो प्रोडक्टिविटी के कारण ही था कि हमारे देश में जो है हम इतना आयात कर रहे हैं? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, 1985 की बात है, तो उनके यहाँ पर जो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है, और मेरे पत्रकार भाई जो है इस बात को समझते हैं, तो हमारा जो आयात था वो एडिबल ऑयल्स का 3रे नंबर पर था। सबसे पहले नंबर पर हम पेट्रोल का आयात करते थे और फ्यूल का आयात करते थे, और वो आप जानते हैं जो क्रूड ऑयल आता है वो इसलिए आता है क्योंकि हमारे देश में पैदा नहीं होता है। सेकेंड जो था उस समय के आयात में फर्टिलाइजर था, वो भी हमारे देश में पैदा नहीं होता था। तीसरा जो था वो एडिबल ऑयल्स था, उसमें 15,000 करोड़ रुपए का एडिबल ऑयल भारत में आयात हो रहा था। मैं 1985 की बात कर रहा हूं, और उस समय राजीव गांधी जी ने ये कहा था कि भाई मैं कम से कम एडिबल ऑयल तो अपने देश में पैदा कर सकता हूं, तो मुझे बाहर से आयात करने की क्या जरूरत है, मेरी करंट अकाउंट डेफिसिट को मुझे कम करना है। और उन्होंने उसके लिए एक ऑयल सीड टेक्नोलॉजी मिशन का गठन किया। ये 1985-86 की बात है। हमारी उसमें पैदावार 11 मिलियन टन थी इसकी एडिबल ऑयल की, या अपने जो क्रॉप्स हैं उनकी, और वो जो क्रॉप्स थी उसकी जो 10 साल के अंदर 1994-95 में हमारी पैदावार डबल हो गई थी। 11 मिलियन टन से वो 22 मिलियन टन हो गई थी, और उसको उसमें कहा गया था येलो रेवोल्यूशन। जैसे हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन है, ब्लू रेवोल्यूशन है, वो येलो रेवोल्यूशन था। और उसमें जब ये 93-94 की मैं बात करूं तो उसमें इंडिया वाज नेट एक्सपोर्टर। हम 97% एडिबल ऑयल विद इन द कंट्री अपने देश में ही पैदा करते थे, सिर्फ 3% हम आयात करते थे, लेकिन हम एक्सपोर्ट भी बहुत करते थे उसमें से। तो कहने का मतलब ये है कि उस जो टर्न अराउंड हुआ है 11 मिलियन टन से 22 मिलियन टन का, आई थिंक दैट हैपेंड विदाउट एनी GM क्रॉप। इट हैपेंड बिकॉज हमने एक जो एडिक्वेट एक स्ट्रक्चर होना चाहिए अपनी पैदावार को बढ़ाने के लिए, उसको फॉलो किया, उसको अडॉप्ट किया। हम उसकी बात भी करते हैं। अंडर WTO ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स हैं उसके तहत हमारे पास देश में 300% ड्यूटीज लगाने का प्रोविजन है। एडिबल ऑयल्स के ऊपर हम 300% आयात शुल्क लगा सकते हैं। लेकिन जब 93-94 में मैंने कहा था कि हमारी पैदावार बहुत हुई थी, डबल हो गई थी, उस समय हमने इंपोर्ट ड्यूटीज को कम करना शुरू कर दिया।
और एक टाइम पर इतनी इंपोर्ट ड्यूटीज कम होगी, वो जीरो के लेवल पर आ गई। दो तरीके के इंपोर्ट्स आते हैं एडिबल ऑयल्स के, क्रूड और एक रिफाइंड आता है। उसकी ड्यूटी एक की 0 होगी और एक की 5-6% रख दी उन्होंने, विच इज ऑलमोस्ट 0। ये हमारे आयात का जब लेवल आ गया तो चीपर इंपोर्ट्स दुनिया भर से हमारे देश में आए। आज भी हम तकरीबन 50% से ज्यादा अपने एडिबल ऑयल का आयात हम करते हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट है। तो हमने येलो रेवोल्यूशन को जानबूझकर खत्म किया। खत्म करने के बाद एक ये जीएम टेक्नोलॉजी, जो कि हम जानते हैं पहले प्रो एग्रो कंपनी बहुत साल पहले बीटी कॉटन आने के बाद यही किस्म, यही वैरायटी लेकर आई थी, और उस समय भी उसकी यील्ड कम थी, उसको रोक दिया गया था और वो वैरायटी कहीं चली गई। उसी को दोबारा एक तरह का रिवाइव किया गया है अभी, और उसको हम लेकर आए हैं, लेकिन इसकी भी यील्ड कम है। ये कहा जाता है कि साहब ये इससे 25-26%, या मैं कहीं जगह देखता हूँ लिखा जाता है कि 30% इसकी जो प्रोडक्शन है बढ़ेगी। मैं कई बार डॉक्टर पेंटल के साथ मैंने डिबेट किया है कई प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। मुझे नहीं मालूम, ये बात अखबारों में तो छपी है, मेरे सामने तो उन्होंने नहीं बोला ये बात। और मैं ये बात एस्टेब्लिश कर सकता हूं कि ये वैरायटी जो है, और हम सब जानते हैं इस बात को कि वो वैरायटी जो है ये लो यील्डिंग है। अभी भी इस समय हमारे पास 5 ऐसी किस्में हैं, जो उसमें से 3 तो डीएमएच सीरीज में ही हैं, जो हाइब्रिड पैदा किए गए हैं विदाउट जेनेटिकली मॉडिफाइड। उसमें से एक की जो प्रोडक्टिविटी है वो तो 32 क्विंटल के आसपास है। तो अगर हम कंपेयर ही इसको वरुण वैरायटी से करेंगे, जिसकी यील्ड जो है 20-22 क्विंटल के आसपास है, तो इसकी पैदावार तो ज्यादा होगी। और पत्रकार, क्योंकि हम इतना नहीं पढ़ पाते हैं, इतना समय नहीं होता, तो हम उनकी बात को मान लेते हैं। लेकिन अगर हमने इसको जो डीएमएच 4 किस्म है उससे कंपेयर किया होता, तो ये तकरीबन 15% इसकी पैदावार कम है इस वैरायटी की। तभी मैंने कहा कि इसको डस्टबिन में जाना चाहिए। ये कहना कि भाई इससे ये जो टेक्नोलॉजी है इससे बड़ा अच्छा होगा ये जीएम पैदा करने के लिए जो हाई यील्डिंग होगी, तो डॉक्टर धीरज ने और कपिल जी ने ये बड़ा क्लियर किया है कि ये पॉसिबल नहीं है। मात्र अगर 4-5% बढ़ोतरी भी होती है तो फिर भी ये वैरायटी जो है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वैरायटी से उससे कम होगा। अभी उमेंद्र जी ने कहा कि जो सिस्टम फॉर मस्टर्ड इंटेंसिफिकेशन में अगर उसमें हम 42-45 क्विंटल भी अगर अचीव कर रहे हैं, तो एफर्ट साइंटिस्ट का ये होना चाहिए कि उसको बिल्डअप किया जाए। क्यों देश के साइंटिस्ट जो हैं इस बात से पीछे हैं या चुप हैं कि हमें उस एसएमआई सिस्टम को और भी सुदृढ़ करना है, ताकि सारे देश में जो है पैदावार वो उस लेवल पर आए। क्या कारण है कि हम सिर्फ जीएम पे ही जाते हैं? और देखिए आप, पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूं कि इतनी चर्चा हो रही है जीएम वैरायटीज के ऊपर। सारे वाइस चांसलर मुझे लगता है जैसे मैदान में निकल कर आ गए हैं, लेकिन जब आत्महत्याएं होती हैं किसानों की, एक भी यूनिवर्सिटी उस पर चर्चा नहीं करती है। क्या हमारा काम सिर्फ यही है कि हम जो कॉर्पोरेट ड्रिवन टेक्नोलॉजी है उसी के ऊपर सपोर्ट करें, उसी की बात करें? एक्चुअली हमारा इंटरेस्ट देश की जो पैदावार है बढ़ाने का या इंपोर्ट्स को रोकने का वो नहीं है। अगर वो हो तो हमें सारे पैकेज को साथ लेके चलना पड़ेगा। हम ये अकेले सोचें कि यील्ड से ही हम ये अचीव कर लेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात यह है कि एक तरफ तो गवर्नमेंट खुद कह रही है कि हम 42% अपना एडिबल ऑयल जो है वो पाम ऑयल से लेके आएंगे। गवर्नमेंट तो सेट हो गई है, पूरा सेट कर दिया उसने एक तरीका कि 42% जो भारत की एडिबल ऑयल रिक्वायरमेंट है, आगे से हमारे देश में पाम ऑयल की जो अभी प्रोग्राम लॉन्च हुआ है उसके तहत होगा। और वो जो जंगल कट के जो नए जंगल खड़े होंगे, उसके लिए उसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा है कि उससे एनवायरमेंटल डैमेजेस क्या होंगे, क्या वो जरूरी था। साइंटिस्टों को चाहिए था उस समय बोलते कि हमें येलो रेवोल्यूशन को दोबारा लेके आना है। एफर्ट होना चाहिए सारा येलो रेवोल्यूशन को लेके आने का दोबारा, ताकि उसको मिलाकर हम अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज इस तरीके से गठित करें कि ड्यूटीज को रेज किया जाए। आज भी इंपोर्ट ड्यूटी भारत में क्रूड ऑयल की 0 है, और वो 0 है सिवाय अगर हम जो टैक्स लगते हैं उसको, वो तो कॉमन है हर एक कमोडिटी के लिए जो इंपोर्ट होते हैं, उसको अगर हम हटा दें तो 0 पे है अगर हम, तो ऑब्वियसली द वर्ल्ड इज ओपन, हमारे लिए फ्लड ऑफ इंपोर्ट्स अभी भी आ रहे हैं। तो उस ड्यूटी को मेरा मानना है, क्योंकि हमारे पास प्रावधान है 300% का, हम उसको कम से कम 150% तक लेकर जाएं। ड्यूटीज को, आयात को बंद करें, किसानों को दाम दें जो उनको मिलना चाहिए, और वो जो एनवायरनमेंट होगा आप देखते हैं उसी से जो हमारी जो इंडस्ट्री है वो भी जो दोबारा प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो दोबारा खड़ी होगी। पहले भी खड़ी हुई थी,
फिर उन्होंने अपने आप को अपने शटर खींच लिए थे जब भारत ने आयात शुरू कर दिया। मुझे लगता है कि उसको बंद करके जो है इस सिस्टम को, मतलब जो ड्यूटीज है उसको बढ़ाकर हम इंडस्ट्री को भी, हम फार्मर्स को भी, और ये हम ना भूलें कि मोस्ट ऑफ दीज फार्मर्स जो एडिबल ऑयल ग्रो करते हैं, दे आर इन द सेंट्रल बेल्ट ऑफ इंडिया which is suffering from and hugely suffering from agrarian crisis जो हम देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसका उपचार जो है वो जहां पर बताया जा रहा है वो नहीं है, वो तो सिर्फ कॉर्पोरेट को मदद करना है। और ये सिर्फ भारत में नहीं हो रहा है, ये टाइमिंग देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है। भारत में मस्टर्ड के ऊपर जीएम का जो अटैक है, कीनिया में इस समय 10 साल का जो वहां पर भी बैन था वो हटा दिया गया है। अभी वहां भी जीएम का जो है आयात की बात हो रही है या टेक्नोलॉजी को बिल्डअप करने की बात हो रही है, वहां भी किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इंडोनेशिया में जीएम सोया की बात हो रही है, वहां भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेक्सिको में बोला जा रहा है कि जीएम कॉर्न के खिलाफ उठा दीजिए ताकि वहां से अमेरिका से वो आ सके, वहां भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि ये सोची समझी जो एक रणनीति ग्लोबली अपनाई जा रही है, उसी में हमारा जो इंडियन साइंटिफिक स्ट्रक्चर है वो भी उसी का हिस्सा है। मुझे लगता है कि मैं जानता हूं बहुत से हमारे देश में अच्छे वैज्ञानिक हैं और वो कम से कम इस बात को खुलकर अपनी आवाज को उठाएंगे विद इन द सिस्टम कि आज जो जरूरत है वो जीएम की जरूरत नहीं है। आज जो जरूरत है उस एनवायरनमेंट को दोबारा बिल्डअप करने की जरूरत है जिसमें इंपोर्ट ड्यूटीज को बढ़ाया जाए, आयात को रोका जाए और किसानों को जो उसका वाजिब दाम बनता है वो दिया जाए कि किसान जो हैं वापस उस खेती में जा सकें जहां से वो हट गए थे 93-94 के बाद। तो आई थिंक वी हैव एन अपॉर्चुनिटी, ग्रेट अपॉर्चुनिटी बिफोर अस। एंड ये जो साइंटिफिक जो डायलॉग आज हुआ है, आई थिंक इट्स आल्सो ए चैलेंज टू द साइंटिफिक कम्युनिटी कि ये कहना कि भाई ये लुडाइट्स हैं जो लोग इसको अपोज कर रहे हैं, अगर ये सच है तो मैं ये जानना चाहता हूं कि नेचर जो दुनिया का सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेबल साइंटिफिक जर्नल है, उसने 2020 में अपने अंक में कहा है कि जो बीटी कॉटन भारत में आया था, इट डिड नॉट इंक्रीज द यील्ड। जिस लेवल पे हम सोच रहे हैं वो नहीं हुआ है। उन्होंने कहा इनपुट्स की सप्लाई से, इरिगेशन की एक्सपेंशन से, फर्टिलाइजर के बढ़ाव से वो प्रोडक्टिविटी जो आई है जिसको हम बीटी कॉटन के सिर पर डाल रहे हैं, ये नेचर कह रहा है। क्या हम नेचर को भी लुडाइट कह सकते हैं? कहने का सिर्फ मतलब ये है कि ये जो प्रोपेगेंडा यूनिट है, और मैं तो इनको कॉर्पोरेट लैम्पून्स कहता हूं, जो ये बात फैलाते हैं कि सबको एक उसमें रखना चाहते हैं कि ये लुडाइट्स है, लेकिन सच्चाई बात ये है कि ये लोग जो हैं समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, साइंस के लिए वो सवाल उठा रहे हैं जो आगे आने वाले दिनों में बहुत महत्वपूर्ण होंगे इस देश के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी हम ये लेंगे, क्वेश्चन आंसर लेंगे। मैं कपिल भाई को कहूंगा कैमरा ऑन करें। कपिल भाई के अलावा जी और ये तमाम और लोग, मैडम मान अगर कैमरा ऑन कर सकेंगे, मैडम मान। हाँ, we'll do that. उमेंद्र जी, just start taking questions. सो नील कमल जी का प्रश्न है। ओके नील कमल जी, अनम्यूट कर रहे हैं आप। नील कमल जी फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया, बठिंडा। So my question is either to Ma'am Kavita or Vinder ji. So I have gone through an order by the Supreme Court yesterday, wherein the court has ordered status quo about the approval given by the GEC of the GM crop, saying to ensure no precipitative action was taken until application filed before it is being heard. So I think the court has already taken the cognizance of certain application filed by certain activists to not allow the commercial cultivation of GM mustard. So in that case, where we stand? कविता जी। Well, the court will do what it has to do in terms of these are pending petitions, one from 2004, another from 2005, and a specific petition that had been filed on GM mustard itself, and what kind of appraisal or approval processes it was going through in 2016. So the court, at that time, when a injunction application got moved, all these cases are clubbed. They're being tagged and they're heard together. At that time, the Union of India in its affidavit said, why are people rushing to the court like this? The petitioners are arguing something when nothing is happening.
We have not taken a decision yet as government of India. They don't have to worry, and the court doesn't have to worry. Nothing will be done. And when we take a decision, we will come to you, and you will have ample time to look at it. This was a Union of India affidavit that got filed in 2017 with the court. The cases were filed in 2016. And the court said, okay, all right, when you take a decision, you first have to place it on record here. And without placing anything on record, it was Mr. Prashant Bhushan and his lawyers on behalf of Aruna Rodriguez and the petitioners who moved the court for an urgent hearing, and that's how it got heard yesterday. The government didn't do anything. In fact, it is supposed to have walked up to the court itself as per those orders. And 10th November is the hearing on it. But while that may go on as it does, the need for a public debate is very, very important in this country. Today, if you see the headline stories that media people are carrying, because of opinion pieces as well as other news stories that are being written, or features of explanatory features and so on, all of them are picking up this wrong, unfounded, unscientific claim that India's mustard yield will raise by 28 to 30%. We challenge those scientists, those government officials, those regulators, those political leaders, and those media people who think that there is truth in this, to show us which data are they using to claim that there will be a 30% yield by adopting GM mustard. We have again and again proven that GM mustard data has been manipulated. It was tested against the wrong comparators. We even showed that by simple averages being created in a statistically incorrect way, they notched up their yield by 7.5%. They created average of averages and they notched up the yield figure by 7.5%. We are actually claiming and predicting that India's oilseed productivity, mustard productivity, will come down if you adopt GM mustard. It will decline. Why will it decline? Because GM mustard is not high yielding, not DMH11, not its parental lines. Point number one. One of the parental lines, in fact, is not at all preferred by Indian farmers because it has high degree of shattering and so on. Two, sterility trait is going to spread, and sterility manifesting itself will mean yield losses to farmers. Point number three, losses will also be observed by farmers because when your bees and pollinators get affected, they're not just making honey for beekeepers, they're also enhancing yield. That will also get affected. And lastly, glufosinate drift into neighboring crops, non-GM crops, will destroy the border rows of non-GM mustard. And India is a country of very small and marginal holdings. Pesticide drift in the US is the largest cause of litigation amongst farmers. This technology is encouraging Indian farmers to fight amongst themselves by creating losses for each other. For all these reasons, we are actually predicting that GM mustard will bring down productivity in India. How can we walk this dangerous path in this country so irresponsibly? We're challenging people to show that data to us and show it scientifically and show us that you are more scientific than we are. So are we going to challenge their claims in the court as well? In the court, they have been challenged. In the court, yield related evidence has been challenged by all the petitions. Much evidence has been presented. It had compromised on ICAR's AICRP protocols. And I want to draw a parallel between 2002-03 when Bayer's GM mustard
was tightly shut with a lid put on it firmly by GEAC at that time, when they said that 4 location trials are too inadequate, not acceptable to us. Remember, this GM mustard agronomic trials happened in 3 locations sometimes, 1 location sometimes in one zone and so on. And we have presented all this data. And our fight is both in the court and outside it. This is a fight that citizens are fighting for safety of their food, for the interests of farmers, and for the environment. It will unfold in both ways. Inderpreet ji? Okay, Inderpreet ji from Dainik Jagran, Chandigarh. Inderpreet ji. इंद्रप्रीत अनम्यूट कर लो भाई साहब। हाँ जी, हो गया। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ, कविता जी, मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि जो जीएम मस्टर्ड का हेल्थ पे अभी तक क्या क्या नुकसान सामने आए हैं, मतलब अगर जब हम बात करते हैं कि इसका नुकसान है तो हमें ये भी डाटा रीडर्स को देना पड़ेगा कि इसका क्या नुकसान है, अभी तक क्या क्या आया है जहां पे भी ये यूज हो रही है। ह्यूमन हेल्थ की बात कर रहा हूं मैं। तो जहां पे लार्ज स्केल यूज हो रही है, वन शुड अंडरस्टैंड दैट वहां पे साइंटिफिकली कॉज एंड इफेक्ट इसकी वजह से ये हुआ है, वो बताना इट्स अ एक्सट्रीमली चैलेंजिंग concept in science. But what you have to glean from is not the real life situation for cause and effect. Experimental studies क्या बता रहे हैं वो हमको देखना चाहिए। इंडिया में जीएम मस्टर्ड का ट्रायल हेर्बिसाइड टॉलरेंट क्रॉप के नाते हुआ भी नहीं है। ग्लूफोसिनेट स्प्रे करके, इट इज अ हेर्बिसाइड टॉलरेंट क्रॉप, but they have not tested it as a herbicide tolerant crop. In fact, the bar gene expression has been enhanced 10-fold by Dr. Paintel and team, and that is the herbicide tolerance giving trait. But what we have are inadequate, limited studies, including 1 or 2 subchronic studies that have been done, and they are already indicating that there are differences between the GM mustard fed animal and the non-GM mustard fed animal. And the study conclusions have been presented to the GEAC as though everything is hunky-dory. And that biosafety data has not been put in the public domain as yet. Some of us have found ways of laying our hands on that data. We know how to, understand what is happening inside the regulatory regime. But the limited data that is available from limited tests is showing dangers. And there is published literature on glufosinate health impacts. This GM mustard has not been tested with residues of glufosinate because it has not been tested as a HT crop. But glufosinate published literature is pointing to problems. I think Dr. Mann has already pointed you to reproductive health issues, about neurotoxicity, and there are other published materials also about glufosinate. Kapil bhai, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे? हाँ, वही कहना है कि ग्लूकोसिनेट एक हेर्बिसाइड है, दूसरा हेर्बिसाइड ग्लाइफोसेट है, जिसका उपयोग जीएम फसलों के आने के बाद बहुत सारा अमेरिका में हुआ, जहां ग्लाइफोसेट इंड्यूस कैंसर के 14 लाख केसेस आज कंज्यूमर कोर्ट में पड़े हुए हैं। 14 लाख, कैन यू इमेजिन 1.4 मिलियन केसेस ऑफ ग्लाइफोसेट टॉक्सिसिटी सुइंग द कंपनी। आप दक्षिण अमेरिका में भी देखेंगे, वहां पे भी आप कई डॉक्टर्स ने कई इलाकों में बच्चों के ऊपर असर, कैंसर का बढ़ावा, इसके बारे में बारी बारी से सरकार को कहा है कि आप हेर्बिसाइड का फैलावा मत कीजिए। एंड दिस टेक्नोलॉजी इज ब्रिंगिंग हेर्बिसाइड टॉलरेंस, इनवाइटिंग हायर यूज ऑफ हेर्बिसाइड्स, जबकि बहुत सारी कमिटी ने, मैंने जैसे कहा है कि इसको मत लाएं। There is evidence. A bunch of 4-5 scientists
जो सारे देश को गुमराह कर रहे हैं और मानते हैं कि वही उनके पास ही सारा विज्ञान पड़ा है। Inderpreet ji, there is evidence of GM crop consumption and correlation to various diseases in some countries, and वो मिल जाएगा इंद्रप्रीत जी? actual epidemiological studies bhi hai from Argentina, from Brazil and so on. I thought you were specifically asking me about GM mustard. ठीक है जी जी। मैडम मान आपने जोड़ना है कुछ? मैडम सुंदर कौर मान, जो इंद्रप्रीत का क्वेश्चन था ह्यूमन हेल्थ इम्पैक्ट, उस पर आपने कुछ जोड़ना है? मैडम सुंदर कौर मान, आपने कोई रिस्पॉन्ड करना है? She's on अनम्यूट कर लीजिए मैडम मान। मैडम मान अनम्यूट कर लीजिए। अभी मैडम ने आंसर किया है ना कि जिसकी टॉक्सिसिटी मैमल्स पे जो टेस्ट एनिमल्स थे, रैट्स एंड रैबिट्स, उस पे तो हो गई है कंफर्म, एंड दीज आर पब्लिश्ड रिपोर्ट्स। तो ये अगर नहीं इसको कंसिडर करते तो दे आर ट्राइंग टू कंसील द फैक्ट्स। It is known to be neurotoxic also. It's known to be physiology impair करता है, और microbiome soil में toxicity increase करता है. So these things are all published. They are in public domain. We'll share the fact sheets on glufosinate. Most of this material from our site is on indiagminfo.org. Please do, and we will share. I'll request once again, share your contact details in the chat box. Yeah. Can I ask my question? Can you hear me? अभी पिछले दिनों साइंटिस्टों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने बोला कि जो जीएम मस्टर्ड खेत में लाया जाएगा वो हर्बिसाइड नहीं है, और इसलिए उसकी ईल्ड हो सकता है जितना वो क्लेम कर रहे हैं उतनी ना हो, लेकिन व्हाटएवर सीड्स, जो सीड फॉर्मेशन होगा उसमें हर्बिसाइड सीड यूज किया जाएगा। तो हाउ डू यू लुक एट दैट? Can I answer So, this? yes, go ahead. Yeah, so actually what they are claiming is कि वो सीड प्रोडक्शन के लिए उसको यूज करेंगे जो हर्बिसाइड टॉलरेंट है, पर जब फील्ड पे जाती है क्रॉप, वो हर्बिसाइड टॉलरेंट ट्रेट तो है ना, द पीपल विल नॉट स्टॉप यूजिंग इट। इस साल आप लोगों को अगर पता हो फील्ड में हुआ क्या है, जो पल्सेस ग्रो करने का कैंपेन था, they use these weedicides to dry the crops so that they can harvest it properly. तो ये तो मिसयूज हो जाता है ना, फिर जब ऐसी रिकमेंडेशंस आ जाएं कि ये हर्बिसाइड रेजिस्टेंस है, तो फिर जब मार्केट में आता है तो मिसयूज शुरू होता है। तो जितना केमिकल पॉल्यूशन हो रहा है वो मिसयूज फिर बढ़ जाता है। व्हेन यू स्टार्ट रिकमेंडिंग, व्हेन इट बिकम्स ए साइंटिफिक रिकमेंडेशन, तो लोग यूज करने लग जाते हैं। इवन यूएसए इज फेसिंग सिमिलर प्रॉब्लम। वो क्रॉप ड्राइंग के लिए शुगर केन, व्हीट, ओट्स, सोया सब पे ये स्प्रे कर देते हैं ग्लाइफोसेट, वो पत्ते सूख जाते हैं, इजी टू हार्वेस्ट। ये मैल प्रैक्टिस इंट्रोड्यूस हो जाती है व्हेन यू रिलीज सच क्रॉप्स। तो वो तो ठीक है, सीड प्रोडक्शन के लिए जो कंट्रोल्ड कंडीशन होंगे, इंस्टीट्यूशनल होंगे, वो कर लेंगे, बट व्हेन द क्रॉप गोज आउट इन द फार्मर्स फील्ड, तो किसका कंट्रोल होगा उस पे? मार्केट का हो जाता है ना। So this is a misappropriation of the situation then. So why should we allow as scientists such things happening? उसके पहले ही we should be thoughtful enough not to release such crops. So maybe this has been done so that they get an approval by No, saying seed that production को जो favor करेगी वो corporate को करेगी, कोई large producer ही करेगा ना seed production, तो उनको favor कर देगा। Gargi, precisely, the application of GM mustard in India has not been moved as a herbicide tolerant crop, and they converted it into a hybrid technology GM because they knew that in Indian conditions, herbicide tolerance will never find any policy acceptance, should not find any policy acceptance. And repeated committees have said no to HT crops. And when Bayer's GM mustard got, put on a hold in 2002, they had applied as a HT GM crop. And from the very next year, our scientist surfaces to start his trials. And it's the same Barnes Bar Star Wala technology package. When you have bar
it means that it is BASTA tolerant. The brand name is BASTA or Liberty, Liberty Link, and glufosinate. So there is absolutely no doubt that this is a herbicide tolerant crop. And in the Supreme Court, this is the scientific scam that is happening in this country right in front of all of us. Even in the Supreme Court, they have written that this is not a herbicide tolerant crop. It is not being recommended for farmers, but it will be used during seed production. Who has the regulatory capabilities to implement this neatly? How come on lakhs of hectares of cotton in India, illegal HT cotton, where the seed is illegal and glyphosate is illegal, are already being grown? And GEAC writing on a piece of paper one line saying farmers will not be permitted to use it, and we will impose penal clauses from Environment Protection Act. Those of you who've seen the GM mustard approval letter and the minutes know this. They are threatening farmers, saying that you will face penal action under Insecticides Act, under Environment Protection Act. The government of India and the regulators do irresponsible actions, and they are actually saying we will criminalize farmers of this country. What sort of a policy behavior is this? Kapil bhai. तो गार्गी जी, इसमें मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, ये शायद इन्होंने इसलिए करा है to get approval, but at the same time the scientists did admit that if they don't, the yield will go down. Yield will not be as promised of the new crop, of the GM crop. तो पहली बात तो ये है कि ये टेक्नोलॉजी में यील्ड इंक्रीज की कोई व्यवस्था ही नहीं है, ना तो उसका कोई जीन है और ना तो हिट्रोसिस मिल रहा है, ना तो उसका हाइब्रिड विगर मिल रहा है, ना तो हाइब्रिड से कंपेयर किया। यील्ड की बात तो भूल जाए, वो भी भूल रहे हैं। बात ये है कि इससे और विज्ञान का संशोधन होगा, मगर वो छिपा रहे हैं, डेलिबरेटली छिपा रहे हैं, और वो स्कैम है। मैं बारी बारी से हम कहेंगे कि एक प्रकार से विज्ञान में बहुत ही फ्रॉड या स्कैम शुरू हो रहा है, क्योंकि पेंटल साहब ने 2001 और 2 के रिसर्च पेपर में इस देश में एचटी फसलों की आवश्यकता को जस्टिफाई किया है और क्लेम किया है कि हमने एचटी मस्टर्ड डेवलप किया है। न सिर्फ ग्लूफोसिनेट, उन्होंने ग्लाइफोसेट और एक और भी हेर्बिसाइड। The very mandate of CGMCP is producing herbicide tolerant varieties of mustard, and beyond that he is intending to prepare herbicide tolerant cotton varieties. It is very much justified. It was a part of his argument and claims since last 20 years. हम इसको भूल नहीं सकते। वो पीछे दरवाजे से बहुत स्पष्ट रूप में किसानों को ये दे देना चाहते हैं, और आप इस कंडीशन में देखेंगे, उसमें दूसरी लाइन जो कविता जी ने बताई, उसके बाद वाली लाइन ये है कि अगर आने वाले भविष्य में किसानों को इसकी इजाजत देनी है तो हम दूसरी तरफ से उसकी इजाजत दे सकते हैं। यानी they know that farmers will use, there will be a pressure like HT crop, and then the herbicide will be allowed to spray on this crop. This is completely a scam, definitely a scam. किसी बच्चे का नाम और उसके कपड़े, अगर वो फीमेल है उसको मेल के कपड़े और नाम बदलने से उसकी जीनोटाइप नहीं बदलती है। This is a herbicide tolerant crop by its intention, by its genetic makeup, by its phenotypic characters, and both the parental lines will produce 100% herbicide tolerant offspring. कितने भी बच्चे पैदा होगा वो 100% glufosinate resistant होंगे। And in other countries, pesticide residue MRLs. You all understand what herbicide tolerance is. The plant actually starts absorbing more chemical without getting destroyed. Residue levels have been revised 400% in the USA and other places after HT crops have been allowed. MRL is not a safety indication. They make it look as though MRL is protecting you, maximum residue limits, and that has been revised 400% in other countries which have accepted herbicide tolerant crops.
I think customers and consumers of food in the country have to be worried about this GM mustard, and Punjabis and others who eat sarson da saag have to be really concerned about this. Harveer ji has a question. Okay, So Kavita that's ji. what I was saying. Gargi ji, We have imported Uh, canola, we have imported soybean, and now we'll have GM mustard. So that's all we'll give to consumers in India. All GM जी, crop, GM edible oil. जी, हरवीर सिंह, ये जो ऑर्डर आया है ये कितने लोगों ने देखा है? जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कल जो आया है, बिकॉज आई रिसीव द ऑर्डर लेट इवनिंग, वो 4-5 लाइन का ऑर्डर है. वहां पे वर्बल जो जजेस ने बोला होगा, आई डोंट नो दैट, बिकॉज अगर हम कोर्ट में नहीं है और हमने नहीं सुना तो उसमें कहना बड़ा मुश्किल होता है. बट जो ऑर्डर है वो 5-6 लाइन का है और उसमें यही कहा है कि भाई इन्होंने टाइम मांगा था, हम इनको टाइम दे रहे हैं एक्स्ट्रा एविडेंस और एफिडेविट वगैरह देने के लिए, और जो पिटिशनर है उनको भी कह रहे हैं आप भी दे दीजिएगा, कुछ एक्स्ट्रा आपके पास है तो, प्लस नोट्स मांगे हैं और 10 तारीख की हियरिंग की डेट है. अभी इन्होंने एक गजट नोटिफिकेशन निकाला है ग्लाइफोसेनेट को लेकर के कि भाई उसकी जो भी खरीदेगा, जो इस्तेमाल करेगा वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसको सर्टिफिकेट लेना चाहिए, वो सारी चीजें की है. तो ये वो टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी के जो तथ्य हैं जो उन्होंने कहे हैं वो क्या पब्लिक है क्या? बिकॉज बीइंग ए जर्नलिस्ट आई जस्ट वांट टू नो कि वो क्या पब्लिक हुई थी क्या सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट? So, Harveer ji, if I understood you correctly, you want to know कोर्ट का आदेश को कैसे हम इंटरप्रेट करें, आप ये पूछ रहे हैं? जी हाँ, it's very clear that yesterday, whatever came out in writing from the court, the bench जी. certainly was directing. कविता जी एक बार. उमेंद्र जी कविता बोलो. नहीं, उमेंद्र जी कुछ बोल रहे थे. प्लीज कंटिन्यू. तो नहीं, कविता जी आप बोलिए. हाँ, तो the bench said 3 times to the government, do not precipitate matters, nothing should be planted. So this was clearly told to the government side. And जैसे आप बोल रहे हैं 10th वाला हियरिंग में, क्योंकि जब इंजंक्शन का एप्लीकेशन भी मूव किया गया था, अलग अलग लोगों ने अलग अलग उसमें मुद्दे उठाए थे. एक पिटिशन में टेक्निकल एक्सपर्ट कमिटी ने एचटी क्रॉप्स के ऊपर बैन ही मांगा है. दे रेकमेंडेड ए बैन वाली बात, उसके ऊपर ज्यादा जोर दिया गया था. एक और पिटिशन में बायोसेफ्टी डोसियर को क्यों नहीं पब्लिक डोमेन में पब्लिश किया गया है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का ही उल्लंघन है, ये कहते हुए एक पिटिशन ने आर्ग्यू किया था. और बाकी सब कमिटी में क्या क्या गलत हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, वो सब मुद्दे. तो all of that will be heard, and the TEC report, from what I know and remember, was never submitted in a sealed cover. जैसे बाकी केसेस में हम सुनते हैं कि सील्ड कवर में चला गया है और बाद में उसी कमिटी का एक मेंबर ने कहीं पब्लिश कर दिया है, ऐसा कोई इधर नहीं हुआ है. एंड सुप्रीम कोर्ट पिटिशन को भी अपलोड नहीं करता है. In India, the court system is not such that the original petitions or submissions are in the public domain. You can certainly ask, you can apply, and there are various ways by which you can legally apply to access those papers. And TEC report is in the public domain. It is even available on the indiagminfo.org website. And we do know that all the independent experts, including 2 of the government nominees, have unanimously said no to HT crops in India and no GM in those crops for which India is the center of origin and diversity, or mustard mein hum center of diversity hai. So these are things that are being brought back because in the context of GM mustard, as well as an immediate approval that the government is thinking of, that the regulators are thinking of HT cotton approval also. So this is where things stand with regard to the TEC. डॉक्टर धीरज सिंह. हरवीर सिंह को देखते हुए मुझे ज्यादा याद आ रहा है
ये बहुत मीडिया की इस देश में इस समय बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि सच को बाहर लाए। अगर एक्टिविस्ट भी गलत बोलते हैं तो उसको सुधारे, सिस्टम वाले पॉलिटिशियंस और साइंटिस्ट भी अगर गलत बोलते हैं तो सुधारे, और उनका बैंड बाजा लगाने में न लग जाए। मैंने वो बंसल साहब का इंटरव्यू सुना और उसमें बहुत सारे लाइज। तो मैं बहुत स्पष्ट रूप में जिम्मेवारी के साथ ये कहता हूं कि अगर ऐसी कोई भी चीज आती है तो उसको वेरीफाई करे, खुद पढ़े। हमारे पास जितना भी लिटरेचर है सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। उनके पास का पूरा लिटरेचर और बायोसेफ्टी डोजियर भी पब्लिक डोमेन में मांगा जाए, और जिनके पास समय है, जो न्यूट्रल है, विज्ञान की बात करते हैं, देश के हित में सोचते हैं, उनके पास वो दोनों तथ्यों को रखा जाए। और हम पब्लिकली, जैसे कविता जी ने भी बताया, हम पूरी साइंटिस्ट टीम, मिनिस्ट्री, जीईएससी को पब्लिकली चैलेंज करते हैं कि वो साबित करे कि इससे उत्पादन बढ़ेगा, इसकी इंपोर्ट कम, ऑयल इंपोर्ट कम होगी और एचटी फसल के नुकसान नहीं होंगे। वो साबित करे। हम खुले में पब्लिकली उनको चैलेंज करना चाहते हैं, उसकी अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, और इसीलिए बारी बारी से इस संवाद के बाद वो लोग हमारे साथ बैठते नहीं हैं, क्योंकि वो मानते हैं सच कहाँ है। प्लीज मीडिया शुड नॉट यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू एम्प्लीफाई द वॉइस ऑफ अनट्रूथ and misinformation and wrong science. Please, for the sake of country, don't do this. मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये जो कंपैरिजन करते हैं ना यील्ड का, कि हमारी यील्ड कम है, दिस इज अ रॉन्ग वे ऑफ कंपेयरिंग एग्रीकल्चर, बिकॉज इकोलॉजीज आर वेरी डिफरेंट। इंद्र शर्मा जी ने बड़ा अच्छा बता दिया था कि हमारे वी वर सेल्फ सफिशिएंट, and I think that is a point that should be highlighted. ये जो comparative analysis है कि फलानी country की ज्यादा, this is a ecological devastation of Punjab इसी तरह हुई है। We should not go ahead with this kind of logic that कि हमारी कम है कहीं ज्यादा है। हमें अपनी need based production पे जोर देना चाहिए, and there will always be some surplus which can be exported. Now over to Devendra Sharma ji for concluding remarks. एक बात मैं जाने से पहले कहना चाहूंगा, जितने भी साथी रह गए हैं, हम ही लोग रह गए हैं, तब भी उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि जब बीटी कॉटन भारत में आया था तो आपको याद होगा पहले वो 2001 में उसकी अप्रूवल होनी थी। तो उस समय जीईएसी के चेयरपर्सन साहब ने 4 लोगों को बुलाया सिविल सोसाइटी से, और बाकी सारी कमेटियां जो थी, जीईएसी, आरसीजीएम और मॉनिटरिंग कमेटी के सारे मेंबर, प्लस जो प्रमोटर थे माइको मॉन्सेंटो वगैरह और उनके साथ जो किसान थे, वो सारे आए थे। उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग तथ्य पेश हुआ था। आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट माइको मॉन्सेंटो ने ये कहा कि हमने अपनी क्रॉप जो है वो 2 महीने लेट सोइंग की थी, और उसके बावजूद भी उनको 50% अधिक पैदावार मिली। ये डाटा पेश किया गया था जो अप्रूव था बाय आरसीजीएम एंड मॉनिटरिंग कमेटी एंड जीईएसी, उसी के तथ्य पर उसको अप्रूवल मिलना था उस दिन। लेकिन जब मैंने ये सवाल उसमें उठाया कि कि अगर ये वाकई सच है कि 2 महीने लेट सोइंग करने के बाद भी आपकी प्रोडक्शन 50% बढ़ जाती है, तो आप एक एडवाइजरी जारी करिए सब किसानों को कि साहब आप आगे से 2 महीने बाद उसकी सोइंग किया करें। तब उन्होंने कहा ये हम नहीं कर सकते। मैंने कहा क्यों नहीं कर सकते? अगर आप किसानों को नहीं कर सकते तो ये किस लिए है कि कंपनी को आप ये कर रहे हैं? तो अब मॉनिटरिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे, बहुत डिस्टिंग्विश्ड एक साइंटिस्ट एग्रीकल्चर के, मेरे परिचित भी थे। उन्होंने कहा देवेंद्र तुम्हें पता होना चाहिए कि हम इसमें सिर्फ यील्ड देख रहे हैं। तो मैंने कहा जितनी साइंस मैंने पढ़ी है वहां तो डेट ऑफ सोइंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो आप ऐसे करिए, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साइंटिस्टों को भी और फार्मर्स को ये लिखिए कि साहब आगे से 2 महीने बाद फसल लगाइए और आपको यील्ड ज्यादा मिलेगी। तब वहां जो हंगामा हुआ उसके बाद उसको रोक दिया गया, और आपको याद होगा कि वो 1 साल बाद में रिलीज हुई है। रिलीज उसी दिन होना था, लेकिन उसको 1 साल तक रोका गया। मैंने 3 साल की डिमांड की थी कि रिसर्च होनी चाहिए दोबारा, उन्होंने उसको 1 साल ग्रांट किए शाम को, वो भी जब आईसीआर ने उनको कहा कि आप 1 साल तक ही मान जाइए। 1 साल के बाद किसी को नहीं बुलाया गया और वो चुपचाप रिलीज होगी। तो आई थिंक इट इज वेरी क्लियर कि वी हैव टू कीप ए वॉच
और विजिलेंस हमें ज्यादा बढ़ानी है कि इस तरीके के साइंटिफिक फ्रॉड हमारे साथ ना हो पाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सब साथियों को। आई थिंक दे हैव डन ए रिमार्केबल जॉब एंड वी नो कि वी आर ऑन ए साउंड फिटिंग एंड आई थिंक आई एम श्योर मेरे सब साथी मानेंगे कि वी नीड टू चैलेंज द एग्रीकल्चर साइंटिस्ट टू कम एंड हैव ए डिबेट विद अस। Let us have a public debate anywhere in the country and we are open to it. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आप सबको। जी, सब इसी का सबका धन्यवाद के साथ कि हम चैलेंज करते हैं। हम चाहेंगे मंत्री जी, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, वो इस डिबेट की अध्यक्षता करें, आमने सामने बैठ के हम बिल्कुल चैलेंज करते हैं और हम ये कहते हैं साइंटिफिक फ्रॉड हो रहा है देश के साथ, ये धोखाधड़ी हो रही है और ये हमारे भोजन में जहर मिलाया जा रहा है। ये नहीं होने देंगे, किसी कीमत पे भी नहीं होने देंगे। और मैं ये चलते चलते कह दूं, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए संदेश है, जो पंजाब के पत्रकार हैं, पंजाब में कहीं बिजाई नहीं होनी चाहिए। 10 नवंबर तक सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया है और उम्मीद करता हूं कि पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस विषय पर ध्यान देंगे। आप सभी भाई जुड़े इस पूरे विषय के साथ, तमाम जो पैनलिस्ट उनका धन्यवाद। पत्रकार भाई और बहनों के सहयोग के बिना भोजन की सुरक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा और हमारी खेती की संप्रभुता का यह संग्राम जीता नहीं जा सकता। आप लोग हमारे साथ हैं और हमें विश्वास है हम देश की ये जो लड़ाई है बड़ी, हम जीत के बताएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।